Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. So, today we will continue the chapter Leisure Time, and in this chapter, today we will know about the theatre, storytelling, and reading. So, starting with the theatre, let's move further. Theatre has been an important source of entertainment for people since olden times when Notanki and Jatra were popular. See, जो थिएटर प्रेजेंट सिनेरियो में हम सब जानते हैं वो थिएटर है सिनेमा हॉल, राइट? बट देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन थिएटर एंड सिनेमा हॉल, एंड दैट डिफरेंस इज दैट कि सिनेमा हॉल में जो हम मूवीज देखते हैं, ऑल दोज मूवीज आर रिकॉर्डेड, राइट? वो एक बार रिकॉर्ड हो गई है, शूटिंग हो गई है, बीच में से एडिटिंग की गई है, और वो एक बहुत सारी सीन्स को कट करके जो बेस्ट पार्ट है उसको ले करके लेटर ऑन उसमें वॉइस ऐड करके उसके बाद वो एक रिकॉर्डेड मूवी होती है, राइट? लेकिन जो थिएटर होता है, थिएटर में पीपल हैव टू परफॉर्म लाइव, उन्हें सामने परफॉर्म करना पड़ता है, वहाँ पे रीटेक्स नहीं होते, वहाँ पे एडिटिंग नहीं होती. सो दैट इज थिएटर. आप ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्मेंस देते हो. सो पहले जब रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो लोग अपनी एंटरटेनमेंट के लिए नौटंकी या जात्रा का इस्तेमाल करते थे. वो स्टेज पे चढ़ करके अपने जो प्ले हैं या कोई भी ड्रामा है उसको एक्ट करते थे, एंड दैट इज नोन एज theater. They took up theme from mythology or everyday life to entertain the masses. And the dramatization of Ram Leela and Krishan Leela attract thousands of people in both rural and urban areas even today. प्रेजेंट सिनेरियो में भी आप देखेंगे जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े थिएटर्स होते हैं. थिएटर्स में स्टेज में ऑडियंस बैठी होती है, और स्टेज पे जो आर्टिस्ट होते हैं they were performing the play, right? So रामलीला और कृष्ण लीला की ड्रामेटाइजेशन इज समथिंग वेरी कॉमन. और रामलीला और कृष्ण लीला ऐसी चीज़ है कि जन्माष्टमी के टाइम में और रामलीला जब नवरात्रास चले हुए होते हैं और जब दिवाली आने वाली होती है उस वक्त आप देखेंगे कि बहुत सारे फेयर्स होते हैं, मेलों में भी ये एक्ट हो रहा होता है. इन मॉडर्न टाइम्स theater or drama has developed into a wonderful art. It creates awareness about the challenges faced by our society or country. It also imparts education, ideas, values, and information in an effective and creative way. Theatre is very popular as it establishes a direct contact between the actor and the audience, as the actor was supposed to perform live. Now, do you know that Nukkad Natakas spread awareness and campaign for important issues like pollution, illiteracy, corruption, rights of women, etc. Basically, the word Nukkad stand for the corner of the street. जो कोना होता है किसी भी स्ट्रीट का एक जो एंड पॉइंट होता है, या फिर एक ऐसी एक स्ट्रीट का एंड पॉइंट, दूसरी स्ट्रीट का एंड पॉइंट, या तीसरी स्ट्रीट का एंड पॉइंट, और वहाँ पे सेंटर पे जहाँ पे ये स्ट्रीट्स मिल रही हैं वो वाला कॉर्नर, दैट इज नोन एज नुक्कड़. अर्लियर पीपल यूज टू सिट इन द नुक्कड़ एंड डिस्कस देयर डे टू डे थिंग. whenever they are free, whenever they are having leisure time, they used to sit in the nukkad and chit chat with each other. So from there this nukkad nataks concept is developed. And here what the performers do, the actors used to wear the similar dresses. There is no discrimination, or the character is not shown with the special costumes or something. They are wearing same dresses as you can see in the picture. All the actors, all the participants, they are wearing a black attire, black dress and a red scarf on their neck. But उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, उनकी जो एक्टिंग होती है और डायलॉग होते हैं, उनके थ्रू वो सोशल इशू पहले वो बताते हैं दैट व्हाट इज़ अ सोशल इशू,
Then next they tell that how we are actually suffering from these due to these social issue, and then how we can solve it. So this is how Nukkad Natakas are performed. Now next is storytelling. Storytelling is very ancient and most effective way of inculcating values, culture, and teaching also. So let's know about the storytelling. So a story is called katha in Sanskrit, and kathai in तमिल तमिलनाडु. सो तमिल में इसे कथाई कहा जाता है और संस्कृत में इसे कथा कहते हैं. एंड इट इज़ एन एंशियंट आर्ट विच इन्वॉल्व्स नरेटिंग a story orally, and story exposes the listener to the richness of different themes, culture and languages. आप देखेंगे जब कोई स्टोरी आपको बता रहा होता है तो स्टोरी में उस टाइम का, जिस टाइम की वो स्टोरी होती है, जो ओवरऑल लाइफस्टाइल होता है, जो डे टू डे वर्क होते हैं, वो सब कुछ उसमें बताया जाता है. इवन समटाइम्स द कॉस्ट्यूम्स आर डिस्क्राइब्ड, द ईटिंग हैबिट्स आर डिस्क्राइब्ड, द सोशल इश्यूज आर डिस्क्राइब्ड. Listening to stories has always been a favorite activity for children as well as grown-ups. The grandparents, parents and teachers narrate stories to give information, expand knowledge and imagination. आपने जो कभी नहीं देखा होता है, when you are listening to the story and if the narrator is narrating it in a very effective manner, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने सब कुछ हो रहा है. तो जो एक बच्चा होता है या कोई भी पर्सन होता है, उसकी इमेजिनेशन भी उससे डेवलप होती है. दे हेल्प द चिल्ड्रन टू डेवलप इमेजिनेशन एंड द स्टोरीज may be from our great epic Ramayana and Mahabharata or about historical events. For example, आपने मूवी देखी होगी झांसी की रानी, राइट? लक्ष्मी बाई इज द मूवी. तो उस वक्त क्या हुआ हमें नहीं पता, बट हमने स्टोरीज में सुना, हमने पोएम्स में सुना, एंड लेटर ऑन द मूवी इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी. तो वहाँ पे बताया गया है कि हाउ द पीपल ऑफ दैट टाइम यूज्ड टू लिव एंड हाउ द क्वीन वुड हैव रिवोल्टेड एंड हाउ द ब्रिटिशर्स, उन्होंने भी कैसे रिएक्ट किया है वो भी आपको शो किया है. एंड फेमस पर्सनालिटीज़, जैसे हम गांधी जी के बारे में सुनते हैं, हम नेहरू जी के बारे में सुनते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में सुनते हैं, तो हमें उससे पता चलता है कि उस वक्त उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की होंगी एंड हाउ दे रिएक्टेड, व्हाट इज आवर एक्चुअल हिस्ट्री. The narrators use a variety of expressions. Voice modulation. Voice modulation means change in volume. कोई अगर कहीं पे loud is required, for example when the lion roar, तो वो कैसे रोर करता है? वो loud रोर करता है, हाँ, right? And अगर हम cat की बात करेंगे तो cat जो है धीरे से बोलेगी म्याऊ, राइट? सो जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो यूज़ की जाती है, थीम्स डिफरेंट यूज़ की जाती हैं टू मेक द स्टोरीज इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग. दे मे यूज़ पपेट्स, राइट? आपने देखा होगा बहुत सारी बुक्स अब आपकी आती हैं, जो स्टोरी बुक्स आती हैं उनमें अंदर पपेट्स बने हुए होते हैं. आप उनमें अपनी फिंगर इंसर्ट करके वो जो स्टोरी है वो सुना भी सकते हैं. यू कैन टेल द स्टोरी एंड यू कैन ऑल्सो शो इट विद द हेल्प ऑफ द puppets. and songs, कुछ stories ऐसी होती हैं जो musical होती हैं और कुछ में बहुत सारी लाइट्स यूज़ की जाती है. सो इट इज़ ऑन द नरेटर कि वो किस तरीके से अपनी स्टोरी को मोर इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. Now, do you know that R.K. Narayana, this picture is of R.K. Narayan and he is the most loved storyteller of India, R.K. Narayana. And children love to read his famous stories, Malgudi Days and Swami and his friends. And Sri R.K. Narayana also had a sibling. His name was R.K. Lakshman, जिन्हें इंडियन कार्टूनिस्ट कहा जाता है. उन्होंने भी कार्टून बनाए थे एंड दे आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन द मद्रास. एंड 2001 में मिस्टर R.K. नारायण लेफ्ट द वर्ल्ड, बट स्टिल
even after when he died, he's still among us with the help of his work, right? Presently also we love to watch Malgudi Days and the show Swami and his friend, as both his famous books, they are adopted as TV serials. Moreover, when you watch these shows, तो मद्रास का उस वक्त क्या सिनेरियो था, कैसे मद्रास में विलेज लाइफ कैसी है, हाउ द पीपल यूज टू लिव, हाउ द पीपल यूज टू थिंक, उनका जो थॉटफुल प्रोसेस था, वो किस तरीके से रिएक्ट करते थे सिचुएशन की तरफ, किस तरीके के सोशल इश्यूज होते थे या प्रॉब्लम्स होती थी जो वो फेस करते थे. सो ऑल दीज आर वेरी इफेक्टिवली डिपिक्टेड इन दीज स्टोरीज. This is the picture. ये जो first picture है, this is of Malgudi Days by R.K. Narayana, and second, this is of Swami and his friends. Now, next is reading. So, books are our best friends. They entertain, give important information about any topic, and are easily available. Books are actually a window to the world. अगर आप किसी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में आप फिजिकली नहीं जा सकते हैं, तो बुक्स की हेल्प से आप उस पार्ट का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं. यू कैन गेट नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट, कि कैसा वहाँ पे कल्चर है, कैसे वहाँ पे लाइफस्टाइल कैसा है. एवरीथिंग यू कैन गेट विद द हेल्प ऑफ books and by reading the books. So reading is a leisure time activity that is quite popular among children as well as elders. आप देखेंगे बड़े लोग भी books पढ़ना बहुत पसंद करते हैं. It enhances knowledge and awareness both. Now, do you know that reading is to mind what exercise is to body? अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम फिजिकली फिट होते हैं और हम ज़्यादा रिफ्रेश फील करते हैं, एक्टिव रहते हैं. इन अ सिमिलर वे जो हमारी माइंड होता है, माइंड की एक्सरसाइज होती है रीडिंग. इफ़ यू आर हैविंग अ वेरी गुड बुक एंड यू आर गोइंग थ्रू इट, यू आर रीडिंग इट एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो उस बुक को पढ़ने से आप टायर्ड नहीं फील करते हैं, आप ज़्यादा रिफ्रेशिंग एंड knowledgeable feel करते हैं. A person is never alone if he or she is in the company of books. Reading also helps to develop imagination, expressions and vocabulary. आपकी जो vocabulary होती है, आपको नए नए words का पता चलता है, उनके meanings का पता चलता है, how to use those words ये भी पता चलता है. So this is all for today. Stay home, stay safe, stay strong.